Audio Jungle. Warahmatullahi wabarakatuh. A very good morning to one and all present here. A warm welcome to all the respected press persons, audience members, and the guests. I am Bushra Sheikh and I will be moderating today's press conference. Socialena. Socialena is a student-led social awareness platform that brings the real-world issues into the public dialogue. It aims at creating awareness, responsibility, and actions through the youth voices. In this panel, we have with us Huzefa Maria, Taiba, Laiba, Muskan, Aisha, Muziba, Ifra, Anabia, Arham, Arif, Farhan, and Anas. Now, I would like to hand over the mic to my friend Taiba, who will give you brief of the event and explain you the objectives. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, and a very good morning to everybody sitting here. I am Taiba and I am going to tell you about what is Socio Arena and why does it really matter. देखिए, सोशो अरीना एक साइलेंट एक्सपीरियंशियल एक्सपो जहाँ पर नर्सरी से लेके हाई स्कूल तक के सारे बच्चे ह्यूमन टेब्यूल्स के थ्रू रियल सोशल प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं. यहाँ पर वर्ड्स का काफी कम इस्तेमाल होगा मगर यहाँ पर मैसेज बहुत बड़ा कन्वे होगा. मिनिमल प्रॉप्स बट मैक्सिमम इम्पैक्ट. Our basic fundamental aim is to aware everybody around with local, national, political and global issues. यहाँ पर हम स्टूडेंट्स को एक्सपीरियंस करवाते हैं. क्यों? क्योंकि पढ़ाई ही सब कुछ नहीं है. हमें समझना, एक्सपीरियंस करना भी बहुत जरूरी है. एंड दिस इज हाउ वी गिव एथिक्स, वैल्यूज एंड इस्लामिक पर्सपेक्टिव. यहाँ पर हम प्रॉब्लम्स और उसके पॉजिटिव सोल्यूशंस भी देंगे. यहाँ पर हम ये मानते हैं कि हम सबसे मिलकर एक पॉजिटिव चेंज की शुरुआत होने वाली है. आई नो कुछ लोग अभी सोच रहे होंगे कि एक एग्जीबिशन से क्या ही फर्क पड़ता है, बट आई ट्रूली बिलीव दैट कि बूंद बूंद से ही दरिया भरता है. वी बी हियर विद अ स्मॉल एफर्ट फ्रॉम आवर साइड. जब धीरे धीरे लोग समझेंगे, सारे लोग हमारे साथ जुड़ेंगे, जब उनको वैल्यूज पता चलेगी, इंपॉर्टेंस ऑफ अवेयरनेस, तब we or the small effort is going to be converted into a big impact. This is why I invite you all to please join us on Socio Arena, not as observer, to stay awake, to be aware, and to take a step towards awareness. And now I will handle my mic towards my anchor, and thank you so much. Rahmatullahi wa barakatuh. Good morning, everyone. My name is Raiba Faruqi, and I am really happy to welcome you all here. First of all, हम दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं to all the press members for giving us your time and being present with us. Your presence truly means a lot. At Socio Arena, we are trying to talk about social issues that affect each one of us in one way or the other way. इसमें से एक important topic है press freedom. I personally feel that you all are closely connected to press freedom because you all are the one who bring society's voice forward. जब मीडिया स्ट्रांग होती है तब सोसाइटी भी अवेयर होती है. That's why we believe that you all should be definitely be a part of this exhibition. These are not just our issues; these are everyone's issues because everyone is the member of society. और जब बात सोसाइटी की हो तो हर किसी का पार्टिसिपेशन जरूरी होता है. Thank you for giving your presence here and supporting this initiative. Assalamu alaikum. Thank you. Assalamu alaikum and good morning everyone present here. Myself Huzefa Maria and I am going to explain you the Socio Arena journey. The first exhibition that was held by scholars was Science Exhibition and Science Expo, in which we conducted 100 Muslim scientists' works. It was followed at Maulana Azad Research Center. After that, we conducted the Itihas Expo. It focused on historical research, innovations, and discoveries. And then came Socio Arena. It was the first social exhibition. It was really appreciated by the city leaders, general public, and change makers. Meanwhile, scholars also conducted many events like Foodistan, which aimed at skill development. And then, on public demand, this year we are organizing Socio Arena 2.0, a wake-up call from scholars. What does it make Socio Arena so different? Because other schools organize events like science exhibitions, inter-school competitions, allocation competitions, but Scholar ने एक बहुत ही unique
स्टाइल में एक सोशल इश्यूज को प्रेजेंट करने का तरीका सोचा है, जिसमें हम पब्लिक को अवेयर करेंगे और रिस्पॉन्सिबल बनाएंगे। और इसमें हम एक यूनिक फीचर आप लोगों के सामने रखेंगे, जिसमें हम म्यूजियम स्टाइल फीचर को प्रमोट करेंगे, जिसमें हम यहाँ कार्डबोर्ड के मॉडल्स नहीं बनाएंगे, हमारे खुद के स्टूडेंट्स एक सीन बन जाएंगे। यहाँ कुछ लफ्जों में हम एक गहरा इम्पैक्ट इस सोसाइटी पर देना चाहेंगे। और यहाँ हम एक साइलेंट रिप्रेजेंटेशन करेंगे, जिसमें हम मिनिमल प्रॉप्स और मैक्सिमम इम्पैक्ट देने की कोशिश करेंगे। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू ऑल। मॉर्निंग फॉर एवरीवन, आई एम सैयदा इकराम। कल हम लोग जो सोशल इना में 35 प्लस टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, उस बारे में मैं आज आपको कुछ बताऊंगी। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे डाउरी, चाइल्ड लेबर, मेंटल हेल्थ एंड मोबाइल एडिक्शन। डाउरी ये बहुत ही कॉमन प्रैक्टिस है इंडिया में, जिस वजह से 6000 प्लस डेथ्स होती है। उसके बाद चाइल्ड लेबर, अराउंड 74 लाख इंडिया में रिपोर्ट होती है चाइल्ड लेबर की रिपोर्ट्स। उसके बाद में मेंटल हेल्थ ये एक बहुत ही कॉमन और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसे डिस्कस करने से सब लोग डरते हैं। एंड मोबाइल एडिक्शन को तो हम सभी यहाँ पे फेस कर सकते हैं, जिस वजह से हम हमारी कम्युनिटी डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। इसका हम सोल्यूशन भी देने वाले हैं सोशल मीडिया में, जिसके डाउरी का सोल्यूशन ये है कि हम वुमेन्स को अवेयर कर सकते हैं उनके राइट्स के लिए, और चाइल्ड लेबर के लिए हम लोग बच्चों को फ्री एजुकेशन दे सकते हैं एनजीओज की हेल्प लेकर। मेंटल हेल्थ को हम लोग कंसर्न कर सकते हैं साइकेट्रिस्ट से, और इससे हम नहीं डरना चाहिए हमें। और मोबाइल एडिक्शन के लिए हम डिजिटल डिटॉक्स कर सकते हैं। थैंक यू फॉर माय साइड। We had reached out to the people from different domains: educators, journalism, police administrations, and many more. It reflects the inclusive and collaborating spirit of Social Arena. Now we are free to questions from the press. ये सोशल अरीना का जो प्रोग्राम है, ये आमकास ग्राउंड पर होने जा रहा है 1 फरवरी को। इसमें कुछ अतिथिगण, कोई पॉलिटिकल बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स है, और अभी जैसे नगर सेवक आए वो भी बहुत सारे हैं, ओसामा भैया, इम्तियाज जलील साहब, ये सब भी है। नहीं पार्टिसिपेट आपके स्कूल के बच्चे रहेंगे कि सब पार्टिसिपेट हो सकते हैं? हमारे स्कूल का स्कॉलर्स ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट पूरा पार्टिसिपेट रहेंगे। नहीं दूसरे बच्चे आ सकते हैं दूसरे स्कूल? हाँ, दूसरे बच्चे नहीं आ सकते, देखने के लिए आ सकते हैं, देखने भी आ सकते हैं। तो इसमें क्या मैसेज देना चाह रहे हैं आप ये प्रोग्राम जो सोशल इशू चलते हैं पूरे औरंगाबाद थ्रू और पूरे महाराष्ट्र में और इंडिया में, उसके सोल्यूशन और उसके बारे में बात करते हैं। हम लोगों को अवेयर करना चाहते हैं कि मतलब यहाँ पे दहेज जैसे लेन देन है, उससे कई लड़कियां सुसाइड अटेंड कर रही, तो हम उनको अवेयर करना चाहते हैं कि ये सब बंद कर दीजिए, लोगों का माइंडसेट चेंज करिए, इसके सोल्यूशन निकालिए। हम वो सोशल अरीना में इसके सोल्यूशन बताएंगे कि हम कैसे ये प्रॉब्लम को सॉल्व करें, और हम लोगों को बोलेंगे कि आप भी इसमें पार्टिसिपेट करिए। दूसरे स्कूल्स को भी बोलेंगे कि ऐसे प्रोग्राम्स अनाउंस कीजिए, क्योंकि बूंद बूंद से ही समंदर बनता। अगर हर इंसान चाहेगा कुछ करने के लिए, तभी अपनी कंट्री भी डेवलप होंगी, और ये सब चीजें मतलब पुराने रीति रिवाज वो सब हटेंगे। ये आपके दिमाग में कैसा आया ऐसा प्रोग्राम लेना चाहिए? आपके जहन में कैसा आया है? आप तो स्टूडेंट है। हमने अराउंडिंग्स मतलब सोसाइटी में देखे कि बहुत सारे, अगर कॉलेज में भी बुलिंग कर रहे, मतलब बहुत परेशानी हो रही, बहुत सारे मतलब हाँ बहुत सोशल प्रॉब्लम्स है। तो हम लोगों को इसलिए अवेयर करना चाहते हैं कि सब सुधरे, अपनी कंट्री में हर चीज डेवलप हो, सब सुधार आए कंट्री में। उसमें एक आपका मोबाइल एडिक्शन का बहुत बढ़िया है, बच्चे उसमें बहुत ये हो रहे तो सर देखिए, ये वाली ऐसी इश्यूज है जो हम रोज रियल लाइफ पे बेस्ड इश्यूज है, ये सब हम लोगों में से काफी लोग ये चीजें फेस कर रहे हैं। तो हम ये चीजों को खत्म करने के लिए इनको, पहले तो कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें तो पता ही नहीं है कि ये चीजें प्रॉब्लम्स भी है, ये चीजें इनलीगल है, कुछ चीजें खराब है, क्राइम्स है। तो सबसे पहले लोगों को इसके बारे में बताना, अवेयर करना और इसके सोल्यूशंस बताना, दिस इज अ पार्ट ऑफ सोशल।
उसमें आपके प्रोग्राम में नशा मुक्ति वगैरह के सब कुछ हाँ बात सर, है? काफी टॉपिक्स 35 प्लस टॉपिक्स हम डिस्कस करने वाले हैं जो डेली लाइफ में हम सबको परेशान कर रहे हैं। आज का युवा वर्ग जो है नशे की तरफ जा रहा है, यस सर, उनको उससे बचाने के लिए, अवेयर करने के लिए कुछ है क्या? यस सर। ड्रग एडिक्शन के लिए हमने एक स्पेसिफिक एक्टिविटी है जिसके अंदर हम ड्रग एडिक्शन से उसके हार्मफुल इफेक्ट्स, डिसएडवांटेज और उसके सॉल्यूशंस भी बताएंगे। आजकल चाइल्ड लेबर बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, इसके लिए हम जो है एनजीओ निकाल रहे हैं, जैसे बालवाड़ी हो गया, गवर्नमेंट बहुत सारी स्कीम निकालती रहती है, तो इसके जरिए बच्चे काम छोड़ के पढ़ सकते हैं। ऐसे भी है कुछ मुस्लिम्स जो जिन्हें पता है कि इस्लाम में मेहर का सिस्टम है, स्टिल वो लोग कल्चर के दबाव में आके ट्रेडिशन की वजह से अभी भी दहेज का सिस्टम मुस्लिम्स में भी चल रहा है। तो ये हिंदू मुस्लिम सारे इंडियंस के लिए है, क्योंकि दहेज डाउरी एक इंडियन प्रॉब्लम, नॉट फजूल खर्चा भी हो रहा है शादियों पे, उस पर क्या कहेंगे? हाँ सर, उसके ऊपर शादियों में फजूल खर्चा, वेस्टेज ऑफ वाटर, वेस्टेज ऑफ फूड, सारी चीजें जो हम लोग जिसे हम सोशल प्रॉब्लम ही कंसिडर नहीं कर रहे, जो हमारी सोसाइटी को अंदर ही अंदर अनहेल्दी करती जा रही है, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। मेयर चीज क्या है? मेयर बताया आपने, मेयर स्कूल में सिखाया गया है क्या? मेहर का एक हक जो है तो इस्लाम में औरत को दिया हुआ है, जिसमें शी हैज द राइट कि उसको उसके हस्बैंड से गिफ्ट मिलेगा। और ये कुरान में आयत भी है, सूरह निसा में आयत नंबर 4, जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि औरतों को उनका मेहर खुश दिली से दिया करो। तो मेहर एक औरत का राइट है, वो कोई छीन नहीं सकता उससे। ये समाज के भले के लिए आप लोग ये प्रोग्राम ले रहे हैं, बहुत बढ़िया है, इसकी सराहना भी होगी समाज में। लेकिन आपके इसके प्रोग्राम के पीछे कौन है, किसने आपको मदद किया इतना बड़ा प्रोग्राम खड़ा करने में? स्कॉलर्स इंस्टीट्यूशन और हमारे टीचर्स, प्रिंसिपल सर, प्रिंसिपल मैम, ये सबका बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है और बहुत सारी सपोर्ट इन्होंने किया। कब से तैयारी कर रहे हैं आप लोग ये प्रोग्राम? सिंस 1 महीने से हम इसको प्लान कर रहे थे और अब हम एग्जीक्यूट करेंगे कल इंशाल्लाह। इसका टाइमिंग क्या है, ये कहाँ पर है? आफ्टर 5 आफ्टर 3 o'clock आमखास मैदान में 1 जनवरी को रहेगा, आफ्टर 5 o'clock। हम सबको रिक्वेस्ट करेंगे कि आप यहाँ पर आइए और हमारे प्रोग्राम का मकसद देखिए, अवेयर होइए, मतलब ये प्रोग्राम से सब सीखिए और आगे मतलब चेंजेस लाइए। हम पेरेंट्स को भी कहेंगे कि आप आइए, स्टूडेंट्स को भी कहेंगे और जर्नलिस्ट को भी कहेंगे कि वो सब फिर टेलीकास्ट करके वो सबको अवेयर करेंगे। जर्नलिज्म इज अ 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, उनके वजह से ही हमारी कंट्री अवेयर होती है। तो हम आपको भी रिक्वेस्ट करेंगे कि आप सब वहाँ पर कल आइए। हम जो पूरे स्टूडेंट्स हैं वो स्कॉलर्स ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के स्टूडेंट्स हैं। यहाँ पर जो पैनलिस्ट बैठे हैं वो ग्रेड 9 और 10 के स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने सोचा है ना जो हमारा कल प्रोग्राम होने वाला है उसका इम्पैक्ट, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, वो हमने यहाँ पर लोगों को बताया है। और यहाँ पर हम लोगों को अपील कर रहे हैं और उन्हें ये एजुकेशन दे रहे हैं कि क्या प्रॉब्लम्स हो रही है सोसाइटी में और हमें उसके सॉल्यूशंस कैसे निकालने चाहिए। तो वो वहाँ पर आए, हमारे स्कूल के बच्चों की मेहनत देखें और सोसाइटी में क्या चल रहा है इसके बारे में जानकारी ले और खुद का भी कंट्रीब्यूशन सोसाइटी के लिए कुछ दे। So in which class they were studying now? 9, some are of 9 and some are of 10. In 9th and 10th class. Yes.